Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. Today we will start a new chapter that is alternating current, and in this chapter we will inshallah see that the output current that was generated by an AC generator, which we studied in the previous chapter. How does it work? How does it transmit? And what are the major components that play a very vital role in order to study an alternating voltage or alternating current. So to start with, we will today inshallah discuss some of the basic terminologies which are really important in order to understand the concept of alternating current. So inshallah हम कोशिश करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और इसके साथ साथ जो पीक वोल्टेजेस हैं इन सब के ऊपर गुफ्तगू करें. And finally we will see root mean square value and why do we need RMS value as well. So these are the contents of today's lesson. Just try to find out the answer by yourself कि क्यों ऐसा है कि we generally prefer to use alternating current instead of using direct current. So as far as the difference is concerned, तो alternating current की जो output होती है that keeps on changing its polarity over the period of time, whereas the direct current DC, it does not change its polarity. So the major difference between both of them is the polarity. When we talk about DC, it will keep a single direction. A simple term that we use, unidirectional current को हम क्या कहते हैं? Direct current कहते हैं. So अगर एक बैटरी connected है एक simple circuit के साथ, where we have a bulb, let's say. So ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. सो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहेंगे एंड दे विल नॉट चेंज. वेयर एज द ऑल्टरनेटिंग करंट इज कंसर्न, सो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से t/2 तक, it let's say that it has this end which is positive. So on the next side, on the next end, you will find कि alternating current की जो direction है that will change. So that let us say that there is some bulb. So it is glowing. So the current will flow from positive to negative terminal. On the next half, from t/2 to t, you will see कि यहाँ पर जो current का यहाँ पर polarity है that will get reversed. Like this one will become positive and this one become negative. So ये जो polarity की reversal है ये direction of current को भी reverse कर देगी. So this process will keep on going. Bulb glow करता रहेगा but the alternating current will keep on oscillating in the circuit. So this is the main difference between DC and AC. So let us see, let us go ahead. So these are the contents of today's lesson. Rather than just explaining each of the terms, I would like to take feedback from you. तो one by one आप point by point मुझे बताते जाएं कि ये कौन कौन से points हैं. What does it reflect? ये point one, ये एक sinusoidal wave है. This is a sinusoidal wave. In this sinusoidal wave, you know कि एक जो alternating current का generator है, it produces voltages like this, जो कि with respect to time इस तरह से टाइम पीरियड. जी शाबाश. अगर हम टाइम एक्सिस के मुताबिक देखें देन इट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम पीरियड. इट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड की साथ डेफिनेशन भी बता दें. The time required to complete one cycle, sir. शाबाश, वेरी गुड. Sir, ये one cycle भी है, sir. शाबाश. इट इज रिप्रेजेंटिंग वन साइकिल. वन साइकिल क्या होता है? वन साइकिल आपका वो एक वेव का सेगमेंट होता है जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है. सो अगर आप इस वेव के इतने सेगमेंट को देखें, सो इन दिस सेगमेंट
अभी wave is increasing and then this maximum point, peak point and then decreasing. Zero पे आ गई, zero crossing के बाद then further increasing on the other side, maximum value on the other side and again decreasing towards zero. अब इतने वाले सेगमेंट के बाद आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इट इज गोइंग टू रिपीट इट्स स्टेट. पॉइंट नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. शाबाश. पॉइंट नंबर 1 इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब ही मैक्सिमम होता है बेटा. सो इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड. ये आपके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो amplitude means the maximum displacement that a wave covers. हमारे इस केस में इस एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इस पॉइंट से है, तो इस पॉइंट 4 का नाम बता देंगे वोल्टेज के हिसाब से. समथिंग लाइक v is equal to v नोट साइन ऑफ थीटा. तो इसके मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पॉइंट 4 क्या इंडिकेट कर रहा है? सर यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट होगा, शाबाश. लेकिन वो करंट होगा, जो उसके दूसरे साइकिल पे स्टार्ट हुई थी. यानी कि इस पॉइंट का एक नाम बताएं जो कल की टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं. पीक वोल्टेज. शाबाश. अगर वोल्टेजेस का ये वेरिएशन है, if this one is the voltage then it is peak voltage, and if it is a graph which is indicating the variation of alternating current, तो ये peak current होगा in that case. So this is peak voltage. तो peak voltage इस फॉर्मूला में कहाँ पर लिखा हुआ है, किस नाम से लिखा हुआ है? Voltage is indicated by V naught. So V naught is representing the peak voltage. It is a constant. अगर कोई यूनिफॉर्म आउटपुट आप की मिल रही है, then it will be a constant. The maximum value of the voltage delivered by an AC generator is peak voltage. Thank you, Ashraf, for adding this point. Point number 5. Point number 5 है peak to peak voltage. So peak to peak voltage क्या होता है? वो वोल्टेज जो कि पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के दरमियान में इनका सम होता है. द सम ऑफ द पॉजिटिव पीक एंड द नेगेटिव पीक इज नोन एज पीक टू पीक वोल्टेज. इसकी डिस्कशन अभी आगे आएगी भी, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई, अगर पॉजिटिव पीक है प्लस 50 वोल्ट लेट से एंड नेगेटिव पीक है -50 वोल्ट, तो पीक टू पीक वोल्टेज कितने होंगे? V पीक टू पीक कितना होगा? 50 सर. 100 सर. शाबाश. इट विल बी 100, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पीक टू पीक वोल्टेज कैसे आते हैं? पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक दोनों को ऐड करके. एंड कीप इन माइंड दैट वी ओनली ऐड अप द मैग्नीट्यूड्स. द नेगेटिव साइन इज ओनली इंडिकेटिंग कि ये रिवर्स इन डायरेक्शन है. So आपको पता ना, when we talk about magnitudes, then we only deal with the its you can say the value, the mathematical value, the numerical value only, and regardless of the sign. So उसकी polarity को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या देखना है यहाँ पर पीक टू पीक वोल्टेज में कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है. साइकिल है ना. If this one is one cycle, then 0.3 is representing 2 cycles. 0.1 is representing 2 cycles. तो ये जो 0.3 है, this 0.3 is representing 2 cycles. So अगर ये 2 साइकिल 1 सेकंड में, मैं अगर फर्ज कर लूं कि ये जो वेव आपके सामने जो पूरी वेव नजर आ रही है ये 1 सेकंड में बनी है, तो ये होगा जी 2 साइकिल्स पर सेकंड. 2 साइकिल्स पर सेकंड. So we all know कि साइकिल्स पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ शाबाश, वेरी गुड. द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर 1 सेकंड or in a unit time is known as the frequency of the wave. So in any case कि मेरे पास इस तरह की वेव है which has covered like
this much if it is displaced or it covers these cycles, तो इसकी frequency बता सकते हैं आप देख के? मैं इसको ऐसे याद रखता था, NF दिस इज 1 साइकिल, 2 साइकिल हो गए कवर, 3 साइकिल हो गए, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल। तो अगर एक वेव 1 सेकंड में 6 साइकिल्स कंप्लीट करती है, देन इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इट विल बी 6 हर्ट्ज सर। शाबाश, ये होगी 6 हर्ट्ज। Very good, Ji. So in this case, we can also represent it as 2 hertz, जो 2 cycles वाला scene था. So in Pakistan, we use 50 hertz cycles per second for transmission of alternating current. जबकि अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, they use 60 hertz. Let us carry on, by the way. So students, having done good exercise, I think so now it becomes very simple for all of us to understand these basic concepts. So the first point is time period. So time period hai the time which is required to complete one cycle. So for denoted by capital T, and time period is reciprocal of frequency. We all know, so time period is reciprocal of frequency. So as far as the frequency is concerned, तो एक सेकंड में जितने cycles मुकम्मल होते हैं, the number of cycles completed in 1 second, the number of vibrations completed in 1 second, the number of rotations completed in 1 second. So frequency can be defined like this. So अब हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं. थर्ड पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. अगर आप इस वेव को देखें तो किसी भी लम्हे के ऊपर एट एनी इंस्टेंट, सो लेट मी से कि ये टाइम वाला एक्सिस है, तो किसी भी लम्हे पे जो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है वो बेटा चेंज हो रही है, इट इज वेरिंग. अगर आप इस लम्हे में देखें, इस इंस्टेंट के ऊपर आपकी वोल्टेज की वैल्यू पीक पे है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर उससे भी कम है, और यहाँ पर 0 है. सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब क्या होता है? द वोल्टेज of an alternating current at any instant of time is known as instantaneous voltage. और ये बेटा वही वाला फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, that was E is equal to E naught sin of theta. और उन बच्चों के लिए who are finding some difficulty, ये वोल्टेज हैं जाहिर है इंड्यूस होके वोल्टेज बन गए ना जनरेटर से, तो मैंने इसलिए उसकी जगह पर V लिख दिया. V is the instantaneous voltage, जबकि V नोट इज द पीक वोल्टेज, एंड साइन ऑफ ये क्या चीज है? दिस वन इज थीटा, ये थीटा है. एंड वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द फैक्ट दैट थीटा इज ओमेगा टी, एंड ओमेगा इज फर्दर 2 पाई f. So what does it become? It makes 2 pi ft. और अगर आप जरा तवज्जो करें तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि V नोट भी एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी भी हम कांस्टेंट मेंटेन करते हैं किसी भी जनरेटर में. वी रोटेट अ जनरेटर विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. तो बचा क्या? बाकी जो वेरिएबल बचा वो है टाइम. सो आपका जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर. सो जब भी कोई वेरिएबल डायरेक्टली टाइम डिपेंडेंट हो जाए, सो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम मेंशन करना उसको समझने के लिए बेहतर समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकली कि किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकें कि इस इंस्टेंट पे वोल्टेज इतने होंगे, इस इंस्टेंट पे वोल्टेज इतने होंगे, एंड दिस कैन बी डन वेरी सिंपली. आगे देखें बेटा, मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पे टाइम पीरियड लिख दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. अब इस फॉर्मूला को मैं आगे यूज करूंगा कि ये साइन वेव क्यों बनी है, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड टाइम से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एट एनी पॉइंट इन टाइम द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज चेंजिंग. थैंक यू. सो मैं उसी फॉर्मूला को आगे कैरी ऑन कर रहा हूं, और मैंने कहा सिर्फ टाइम वेरी कर रहा है. सो लेट अस डिस्कस के इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होते हैं. इसको मजीद बेहतर समझने के लिए आई हैव सॉर्टेड आउट some different points
जिनके ऊपर आप वोल्टेज को देख सकते हैं. सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, सो जब स्टार्ट होगा तो टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 होगा. तो बेटा जब t इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा. साइन 0 कितना होता है, 0. तो इब्तदाई तौर पर वोल्टेज कितने हैं, इनिशियली द वोल्टेजेस आर 0. व्हेन इट रोटेट्स, जनरेटर जब रोटेट करता है और इस पॉइंट तक पहुंचता है, तो इस पॉइंट पर बेटा आप देखें तो यू कैन सी के वी हैव कवर्ड 1 क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड. का मतलब है कि एक साइकिल का 4th पार्ट, चौथाई हिस्सा. सो t/4 जब कवर होगा ना, तो t/4 कवर होने के बाद मैं यहाँ पर t/4 लिख दिया. मैंने टाइम की जगह पर इस इंस्टेंट की वैल्यू लिख दी t/4. t कट जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2s are 4 बचेगा. सो यू विल गेट pi/2. सो साइन ऑफ pi/2 कितना होता है, साइन ऑफ pi/2 इज 1. सो इट इज 1. सो यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो वो लिखने की वजह जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई होगा एंड वी विल गेट पीक वोल्टेज. सो आप देख रहे हैं किस तरह मैं हर लम्हे के ऊपर जज कर सकता हूँ कि इस लम्हे पे वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है. नेक्स्ट एक और आप एक्सक्यूज मी एग्जांपल देखें. जी जी सर, ये टी और 4 का क्या मानी है सर? ये कौन सा टाइम है सर? जी बेटा, द इमेज वाज अ बिट ब्लर. सो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या चीज, यहाँ से इधर तक ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला, ये क्या चीज है जी बेटा, तो बता सकते हैं. जी जी सर, ये 1 साइकिल है. ये 1 साइकिल है, ठीक है. एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड सर. टाइम पीरियड. सो शाबाश. तो मैं यहाँ पर t लिखता हूँ. फर्ज करो t इज अ वेरिएबल. टाइम है ना, टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना. t इज, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, x + 7 इज इक्वल टू y समथिंग. तो हम कहते हैं y जो है ये डिपेंड कर रहा है x पे. तो मैं x की वैल्यू चेंज करता जाता हूँ, मुझे y की वैल्यू मिलती जाती है. तो मेरा यहाँ पर जो वेरिएबल है वो टाइम है. और टाइम के ऊपर कौन सी चीज डिपेंड कर रही है, टाइम के वेरी होने से मेरे वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज हो रही है. मैं आप लोगों को ये वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि देखें मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जब टाइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ ना, तो मैं उसकी एग्जैक्ट वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो अचीव कर रहा हूँ. जिसमें से अभी तक मैं 2 पॉइंट आपके सामने कवर कर चुका हूँ. इनिशियल पॉइंट में टाइम पीरियड t कितना था, t वो 0. सेकेंड पॉइंट जो मैंने पिक किया वो है टाइम पीरियड का 4th पार्ट. वो कौन सा पार्ट था, वो ये वाला पार्ट था. कैसे 4th पार्ट है, ये देखो, ये टाइम पीरियड है, टाइम, और ये टाइम पीरियड का हाफ है t/2, और ये उस हाफ का भी हाफ है, ये कितना होगा t/4. सो और ये कितना होगा, इसका 3/4. कितनी बार t/4, 3 बार 3 t/4, टी ओवर 4. 3/3/4. सो मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम क्लियर हो गया पॉइंट. जी जी सर. चलिए शाबाश, वेरी गुड. सर सो जो आई एम, हमने वे में पढ़ा था, लैम्डा ओवर 4, लैम्डा ओवर 2. yes, so there are different ways you can study the voltage in terms of angle. अगर आप in terms of angle पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ते हैं v is equal to v naught sin of theta. लेकिन हम टाइम के ऊपर आप देखते हैं, रियल टाइम जो रियल लाइफ सिस्टम्स हैं वो वक्त के बढ़ने के साथ अपनी स्टेट चेंज करते हैं. लेकिन जनरेटर एक पीरियोडिक सिस्टम है. पीरियोडिक सिस्टम का क्या मतलब है, घूम ही रहा है ना, घूम ही रहा है ना, रोटेट ही कर रहा है ना. तो या 0 एंगल होगा या 90 होगा या कोई दरमियान 0 से 360 के दरमियान में किसी एंगल भी होगा. सो इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इस वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ फेज देख सकता हूँ. सो ये अगर इन टर्म्स ऑफ फेज देखूंगा एंगल के हिसाब से, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उसमें फिर पाई/2 2 पाई/3 वगैरह वगैरह लिखेंगे. लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये थीटा किसके बराबर है, दिस थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी एज वेल. तो ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी है, मैं कांस्टेंट स्पीड से जनरेटर को घुमाता हूँ क्योंकि मुझे 220 वोल्ट से ज्यादा इंड्यूस नहीं करने, अदरवाइज मेरे घर वालों की जो होम यूजर है, कंज्यूमर है, उसकी अप्लायंसेस जल सकती हैं कम ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से ना.
सो इट मीन टू से हम फिलहाल इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कहा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, क्योंकि हर लम्हे पर हम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिटरमिन कर सकते हैं। ले जी, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है जी मेरा t/2। सो जब मैं t/2 पे हूँगा तो मैं t की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, t/2। इसका मतलब है अभी मैं टाइम पीरियड के हाफ पे जब होऊंगा, सो जब हाफ पे होंगे t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड पाई वी विल गेट, सो साइन पाई विल बी 0, क्योंकि साइन ऑफ 180 कितना होता है, साइन ऑफ 180 इज 0। सो अभी जो पॉइंट हम समझ रहे हैं या देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको समझाने के लिए है, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। किताब में मेंशन्ड है इन पैराग्राफ, सो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ले जी, नेक्स्ट लम्हा कौन सा है, 3t/2। अब मैं इस लम्हे पे हूँ जब टाइम पीरियड का कौन सा हिस्सा है, 3t/4, 3 बार t/4, थर्ड क्वार्टर है ना, एक क्वार्टर है। क्वार्टर आपको पता है ना, अगर किसी सर्कल के एतबार से देखें, सो इन टर्म्स ऑफ अ सर्कल दिस इज 1 क्वार्टर, now it completes half, and now we have 3 quarter। so t by एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा जब एक साइकिल पूरा हो जाएगा, जब टाइम पीरियड का ये फोर्थ पार्ट है, ये टाइम पीरियड का हाफ होगा, दिस वन विल बी 3t/4, एंड यहाँ पे आके टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा अगर ये कोई रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो 0 से t/2, 0 से टाइम पीरियड, सो दैट्स ऑल। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 3 क्वार्टर, t कैंसिल आउट हो गया, एंड देन अगेन सो इट इज क्वाइट सेल्फ एविडेंट कि ये कितना आ जाएगा, यू विल गेट 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। सो 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 270। So you will get sir, 270 sir। so, thank you। So we will obtain minus साइन ऑफ 270 माइनस होता है। सो इट मींस के हर लम्हे पे आप देखें तो मैं टाइम के मुताबिक भी इस वेव को स्टडी कर सकता हूँ, इसलिए हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को मेंशन किया। सो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ओवर दिस लिटिल पार्ट, सो वी आर लेफ्ट विद लेस देन 1 मिनट। सो हम आज के सेशन को कंक्लूड कर लें, तो बाकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। तो ये जिम्मेदारी है उन बच्चों की जिन लोगों ने आरएमएस वैल्यू तक नहीं पढ़ा, वो आरएमएस वैल्यू को आज प्रेप टाइम तक कवर करेंगे। सो इंशाल्लाह आई विल, so as far as the peak voltages are concerned, the highest value of voltage or current achieved by an alternating current is known as a peak voltage। माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके करंट का फ्लो ऑपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज the current, the magnitude will remain same on peak। Of today's lesson is RMS, root mean square value। so root mean square value की क्यों हमें जरूरत पड़ती है, we know कि जो आपका पीक वोल्टेज अचीव होता है, लेट्स से आप घर में बिजली जो सप्लाई होती है फ्रॉम द यूटिलिटी, सो यू कैन फाइंड के वो रफली 220 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो 220 वोल्ट हैं, ये क्या है, आया कि ये पीक वोल्टेज होते हैं या ये कुछ और होते हैं, क्योंकि पीक वोल्टेज तो इस पॉइंट इन टाइम में, एक इस पॉइंट में और एक इस टाइम पर इस साइकिल के दौरान अचीव किया गया है। सो अगर आप इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं इसकी कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने इफेक्टिवली कितना करंट सप्लाई किया, चेंज हो रहा है ना, सो वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हम RMS वैल्यू से मेजर करते हैं। चूंकि अगर आप एवरेज लें, इफ यू टेक एन एवरेज ऑफ दिस पॉजिटिव साइकिल एंड दिस नेगेटिव साइकिल, दिस विल सिंपली सम अप टू 0। तो द क्वेश्चन इज कि क्या अगर मैंने किसी बल्ब के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया है, जैसे आप घरों में देखते हैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो अप्लाई किया जाता है आपके बल्ब के साथ या किसी इनकेडेसेंट लैम्प के साथ, सो यू कैन सी दैट इट इज ग्लोइंग, and as it glows it never stops, like ये 0 पे आ गया तो बंद हो जाए और ये off, because 50 hertz is a very high frequency and the current keeps on oscillating। positive cycle में current, let's say if during positive cycle ये positive end है and this one is negative end, तो current will be moving towards
clockwise direction, along the right side direction, let's say through the bulb. Whereas जब आप polarity को reverse कर देते हैं, तो polarity को reverse करने के बाद you will find कि जो आपके current की direction of flow है that will change, but it is happening so quickly that we can't even see that the bulb is actually um, coming towards this zero level, because it is happening at a very high frequency and the current will keep on oscillating back and forth. So this back and forth oscillation, this to and fro motion of your current will cause your bulb to look like very consistently glowing. So इसका मतलब है अगर आप average current लेते हैं, so what is an average? Average is measured by initial and the final values and divided by 2. So this is how we take an average, the initial value and the final value and divided by 2. So अगर आप average लेंगे इस केस में it will become 0. इसीलिए हम RMS वैल्यू को यूज करते हैं. Let us try to understand कि स्क्वायर क्यों लिया. So if let's say the positive voltage were VI and final voltages are VF divided by 2, तो मैं इस इंस्टेंट को कंसीडर कर लेता हूँ. सो अगर मैं एवरेज लेता इनिशियली लेट्स से पॉजिटिव पीक एंड फाइनली नेगेटिव पीक एंड देन इट वुड हैव समड अप टू 0. लेकिन मैं अब क्या करूँ, आई हैव टेकन अ स्क्वायर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच टर्म वन बाय वन. स्क्वायर लिया. स्क्वायर क्यों लिया? स्क्वायर लेने से फायदा ये होगा कि आपका पॉजिटिव साइकिल तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट द नेगेटिव साइकिल जो कि इफेक्टिवली पावर भी डिलीवर कर रहा है वो भी पॉजिटिव बन जाएगा. सो इफ आई हैव -2 volt, then -2 square will also become 4 and 2 square will also become 4. तो आप ना सिर्फ पॉजिटिव हाफ का बल्कि नेगेटिव वाले हाफ का इफेक्ट भी काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप देखें तो ये मीन है, मीन ऑफ स्क्वायर. सो मीन स्क्वायर वाली टर्म हम क्लियर कर चुके हैं. मीन कैसे लेते हैं? इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2. क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म्स की मीन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वैल्यू सो फार. अब चूंकि हमने स्क्वायर लिया है, सो जस्ट टू फॉर सेक ऑफ अ कंपनसेशन लेट्स से आप इसके ऊपर रूट भी ले लेंगे. सो वी विल टेक रूट. सो रूट क्या होता है जी? स्क्वायर रूट. सो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं. सो दिस इज नोन एज RMS voltage. So ये RMS voltage क्या होते हैं जी? You take the square of initial value and the square of final value, take their average, mean, and then you take a root. So this is root mean square value. ना सिर्फ पॉजिटिव हाफ बल्कि नेगेटिव हाफ भी कंसिडरेशन में आए और हम ये देख सकें कि ऑल्टरनेटिंग करंट ने इफेक्टिवली कितना करंट जो है वो सप्लाई किया है. So RMS value can be defined as the effective value of an alternating current. कि एक alternating current जब फ्लो कर रहा है थ्रू सर्किट तो वो कितना एक किस लेवल की एक मैग्नीट्यूड आपको सप्लाई कर रहा है. एंड दिस RMS इज अप्रोक्सीमेटली द 70%, 71%, somewhere around that of the peak voltage. So we will see that how is it determined. So to start with, in order to understand the formula, we will consider 2 points. So let us say that the initial value of voltage is this, final value of voltage is at this peak point. So it will be V naught. So final value will be V naught. So initial value is 0 because at the initial instant the voltage of AC, the magnitude of AC is 0. It is at mean position, and finally the voltage will be V naught when it is at the peak. So let us calculate during this interval of time the RMS value. So this is so far the mean square value, the square of initial and the square of initial
the square of initial and the square of final value divided by 2, and then take the square root, so that it becomes root mean square value. So I have done this 0 square, and finally final one was v naught square. So और हमने उसको ऐड कर दिया. So by doing this we will separate out the square roots for the numerator and denominator, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये v naught over square root of 2. So this v naught is the peak value, the peak voltage. So if we, let's say, have 1 here, so 1 over square root of 2, 1 over square root of 2 means 0.1 over square root of 2 means 0.70, 0.707. तो अगर आप 1 को square root of 2 से divide करेंगे, so you will get 0.707. So this relation is showing you कि RMS value जो peak value होती है उसका तकरीबन 70% पार्ट होती है. So ये sometimes it can be referred as the equivalent DC of an AC, यानी एक alternating current जितनी पावर डिलीवर करता है उसके बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम कहते हैं उसकी RMS वैल्यू. और ये जाहिर है अगर कहीं पर आपने अपने घरों के मीटर को देखा हुआ हो तो मीटर के ऊपर जो 220 वोल्ट लिखे हुए होते हैं, सो वो 220 वोल्ट कांस्टेंट तो नहीं ना रहते, वो तो कभी 0 होगा कभी मैक्सिमम होगा. सो ये क्या होता है, ये जो 220 वोल्ट लिखा हुआ होता है वो वोल्टेज इज बेसिकली RMS वोल्टेज होते हैं. सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट कर रहा है, इट इज वेरिंग, it will become 0, it will become 10, 15, 20, etc., and to a maximum value, and then it will keep on changing. We cannot allot a single value. So in order to understand it and allot it a single value, so we take RMS. So standard में जितने भी alternating voltages की magnitudes mentioned होती हैं, they are generally the root mean square value. फिर इसकी different forms हैं, it is very important for MCQs. आप directly square root को इधर ले आएं, square root of 2 is 1.41, या आप जैसे मैंने किया 1 over square root of 2 करके 0.707 कर लें, and you can sketch it on graph. Same is the case for current. Alternating current में RMS value जो होती है, RMS value, that is same. So IRMS will also be 0.707, 0.707 times the I naught. So this is what we call root mean square value. So if you have any question, then you can please comment. And let us see some of the application. There are wide applications of alternating current in our real life. हमारे इर्द गिर्द में बहुत सी एप्लीकेशन है. जाहिर है हमारे जितनी भी अप्लाइंसेस हैं वो सब अप्लाइंसेस हैं, the home appliances and the industrial machines as well, they are working on alternating current. So there is a large number, we can name many of them: fan, electric fan, or adapters, chargers, transformers play a major role in transmission of AC power, and electric heaters, grinders, blenders, juicers, all these things, they are operating on alternating current. So students, let us see the message of the day. The message of the day is deposit in the emotional bank account. So the expectation should be very clear to make up a good account. आपके दिल में हमारा account. जी थैंक यू वेरी मच. आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़